नमस्कार, डीजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग 2025 एक बार फिर वैश्विक नीति, कूटनीति और भू राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं और विचारकों को एक मंच पर लेकर आया है। रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने संबोधन में नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया, तो वहीं अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने कहा कि शांत और सुरक्षित विश्व के लिए दुनिया के सभी देशों को एक साथ आना होगा। तो बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन, संप्रभुता की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निष्पक्षता की आवश्यकता पर ही हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान भी। तो चर्चा की शुरुआत से पहले आपको बता दें, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन थ्रोन्स एंड थॉर्न्स डिफेंडिंग द इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस सत्र को संबोधित किया और उसमें उन्होंने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं होगी तो सिर्फ बड़े देशों को ही फायदा नहीं होगा और कोई भी देश जो चरमपंथी रुख अपनाता है और जोखिम उठाता है वो अव्यवस्था का फायदा अपने फायदे के लिए उठाएंगे। We do need an international order, just like we need a domestic order. So if you need a society in a country, you need an international version of that. And it's not just big countries who will benefit if there is no order. I would argue that any country which will take risks, which will have extreme positions, which would test the system, will actually use disorder to its advantage. I mean, we've seen in our own neighborhood, you don't have to be a big country to be a risky country. I have some smaller neighbors who have done a pretty good job at that. So, first of all, I think we should all, understand the importance of an order. Now, the old order, it was an order. It was a product of its times. But why I felt that its virtues were exaggerated was, I think the rule maker and the rule taker had somewhat different perspectives, because I also said in the same interview, if you were at the receiving end of some of those rules or the application of those rules, we had issues. डॉक्टर जयशंकर ने कश्मीर के मुद्दे पर कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर पर आक्रमण को विवाद में बदल दिया। हम सभी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की बात करते हैं और ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और वैश्विक नियमों का आधार है। After the Second World War, the longest standing illegal, I would say, presence, occupation of a territory by another country pertains to India. What we saw in Kashmir. Now, we went to the UN. What was an invasion was made into a dispute. So the attacker and the victim were put on par. Who were the culpable parties? UK, Canada, Belgium, Australia, USA. So, pardon me, I have some question marks on that whole order. Now, I can give you many more. We speak today of political interference. When the West goes out into other countries, it's apparently in pursuance of democratic freedoms. When other countries come into the West, it seems to have a very malign intention. So I think we need, if to have an order, there must be fairness. We need a strong UN, but a strong UN requires a fair UN. तो कई तरह के सवाल उठाए और इसके साथ ही रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन अपने मुख्य भाषण में अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने कहा कि दुनिया में कई मोर्चों पर संघर्ष जारी है और शांत और सुरक्षित विश्व के लिए दुनिया के सभी देशों को एक साथ आना होगा। We live in a time where war and conflict is being waged on many fronts around the world. So your focus again on peace, people, and planet is timely. It is times like this that call on leaders to stand up for these interests that affect us all and will affect generations who will follow. In President Trump's recent campaign for the presidency, he made it a pillar of his campaign to share his commitment to peace and to bring his leadership towards bringing about an end to the Russia-Ukraine war.
Now, these goals cannot be achieved by any one person or one nation alone. Our ability to make progress toward a peaceful, secure, free, and prosperous society must be done together, and it begins with us. तुलसी गबार्ड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के 21वीं सदी का इसे प्रमुख भू राजनीतिक केंद्र बताया और इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। It's a vast and critical region that's not just a geographic space, it is the geopolitical center of gravity for the 21st century. So ensuring peace and stability here is essential to our collective security, our objective of economic prosperity, and our ability to work together to take on the great challenges of our time. And we must tackle these challenges together. Our ability to do so as nations, as leaders, as people, is critical towards achieving our collective goals. वहीं पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व में शांति बहाल करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। India's role, it's a potentially mediating role because Prime Minister Modi talks freely with the Americans and with the Europeans and with Ukrainians, but he also has access to President Putin and could have some influence over him, as he did indeed have in 2022, where he was one of the persons who persuaded Putin not to use tactical nuclear weapons. I think India was always a non-aligned country, talking to everybody, and that puts India in a position of having some influence everywhere. तो भारत में विश्व का जो विश्वास है वो अपने आप में देखने को मिल रहा है और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जो कई सवाल उठाए हैं वो अपने आप में कितने महत्वपूर्ण हैं और कितनी ज़रूरत है इसको विश्व की, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। विवेक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजिटिंग फेलो हैं ORF अमेरिका एंड डिप्टी डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ प्रोग्राम ORF, और हमारे साथ आलोक बंसल भी जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। विवेक जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की आज खरी खरी देखने को मिली और साफ शब्दों में जिस तरह से उन्होंने पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर प्रहार किया है, वो अपने आप में कितना ज़रूरी है और क्या कुछ कहना चाह रहे थे विदेश मंत्री? जी देखिए, जो विदेश मंत्री ने आज कहा है वो उनके FT फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू के आधार पे ही है, जहां उन्होंने कहा है कि द वर्च्यूज ऑफ द ओल्ड ऑर्डर आर एग्जैजरेटेड। तो ऐसा एक तो उससे दो तीन चीजें हैं। एक तो ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां से एक ग्लोबल साउथ की वॉइस को रेजोनेट किया जा रहा है, और जहां पे अभी 120 देशों से लोग आए हुए हैं रायसीना डायलॉग के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई और होता इस बात को कहने के लिए। और दूसरी बात ये है कि ये सच भी है, क्योंकि जैसे हम एक मल्टीलैटरल युग में, बहुपक्षीय युग में रह रहे हैं, तो उसके लिए एक जरूरी खासा एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करने की भी जरूरत है, जहाँ पे इमर्जिंग वॉइसेस को ज्यादा स्पेस दिया जाए। आप स्मॉल आइलैंड कंट्रीज की बात करें, कैरिबियन की बात करें, आप उनकी बात सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जो एक वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर है उससे काफी एक फर्क आ गया है, और जो एक जंग हो या ऐसी कुछ बातें हों उनसे शायद हम कई स्मॉल नेशंस का लेना देना ज्यादा है नहीं। तो इससे जो एक डिवर्जेंस आई है उसी को वॉइस किया है उन्होंने, कि एक जो वेस्टर्न डोमिनेशन है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, वो अब जो है समाप्ति की ओर जा रहा है और एक नई वर्ल्ड ऑर्डर का आगाज हो रहा है, जिसमें भारत की एक अहमियत, एक खासा रोल। बिल्कुल, भारत की भूमिका जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आलोक बंसल जी, आपसे समझना चाहेंगे विदेश मंत्री का जो स्टेटमेंट है अपने आप में कितना सशक्त है, बदलते वक्त की कितनी बड़ी एक ज़रूरत है, और नए वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात है पहली बार नहीं उठी है, कई बार उठाई जा चुकी है और कई देशों द्वारा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी उठाई जा चुकी है। मेरे विचारों से जो विदेश मंत्री ने कहा उसमें दो तीन प्रमुख तथ्य ये थे कि एक, उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यवस्था नहीं रहेगी तो उसमें सिर्फ बड़े राष्ट्रों का ही फायदा नहीं होगा, कोई भी चरमपंथी राष्ट्र जो चरमपंथी विचारधारा को फॉलो करता है उसका भी फायदा हो सकता है।
तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, उन्होंने पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंडों के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा किस तरीके से हम संयुक्त राष्ट्र गए और जहां एक आक्रमण को विवाद में बदल दिया गया और आक्रांता और जो जिसके ऊपर आक्रमण हुआ दोनों को एक ही तराजू में तोलने की कोशिश की। उसी तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान की भी बात की कि उस तरीके से अफगानिस्तान के मुद्दे से किस तरीके से तालिबान का उदय हुआ, फिर पतन हुआ और फिर उदय हुआ और उसमें पश्चिमी देशों की क्या भूमिका थी। तो उन्होंने एक आईना दिखाया पश्चिमी देशों को, जो आज व्यवस्था की बात करते हैं, जो एक वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं। और साथ ही साथ इस रायसीना डायलॉग में उनके वक्तव्य से ये बात भी स्थापित हो गई कि जो भी नई वैश्विक व्यवस्था उभरने वाली है उसमें भारत की एक प्रमुख भूमिका होने वाली है। बिल्कुल, भारत की प्रमुख भूमिका होने वाली है। विवेक जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब विदेश मंत्री ये कहते हैं, जब कश्मीर का वो जिक्र करते हैं और उसमें कहते हैं कि जिस तरह की बात थी, आक्रमण को एक विवाद के रूप में तब्दील कर दिया गया और जो संप्रभुता की बात उन्होंने कही, जो क्षेत्रीय संप्रभुता की बात कही या एक नई व्यवस्था की बात कही, वो अपने आप में कितना ज़रूरी हो जाते हैं जब वो अफगानिस्तान में तालिबान का भी जिक्र करते हैं। तो किस तरह की स्थिति है और किस तरह से जो वैश्विक परिदृश्य है, इसमें विभिन्न देशों ने, समुदायों ने इसका खामियाजा भी उठाया है? जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने कई बात कही है। इसमें एक तो ये है कि हम एक फुल सर्कल आ गए हैं जहाँ पे एक वैलिडेशन मिल गया है इंडिया को, जो इंडिया और रूस, भारत और रूस के संबंध की बात है, वहाँ पे तो हम वैलिडेटेड। हम तो यही कह रहे थे कि बात करके युद्ध को सुलझाएं, युद्ध के मैदान में इसकी सोल्यूशन नहीं निकल सकती। आज वही बात हो रही है, आज ट्रम्प साहब वही कह रहे हैं। तो अगर आप इस इम्पोर्टेंट इशू को नजरअंदाज कर दें तो फिर इसमें बात नहीं बनेगी। दूसरी बात यह है कि कश्मीर का जहां तक मसला है, उसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो संयुक्त राष्ट्र के जो रोल की बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने तो संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को जब ये गया तो एक्सपेक्टेशन कुछ और थे और हुआ कुछ और आप देखेंगे कि जो इसमें संयुक्त राष्ट्र के रिफॉर्म की बात है वो भी इसके एकदम सेंटर पे है, कि आप जब ग्लोबल वॉइसेस चेंज हो रहे हैं, द नेचर ऑफ ग्लोबल पावर इक्विटीज चेंज हो रहे हैं, उसमें संयुक्त राष्ट्र जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। और आज यही बात यहाँ सारे देशों ने मिलकर यही बात कही है कि जब भारत ग्लोबल गवर्नेंस की बात करता है तो उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है, उसकी अलग इंक्लूसिविटी होती है। तो मेरे ख्याल ये सारे हर कंट्रीज के साथ एक कंसेंसस ऑलरेडी बन गया है कि संयुक्त राष्ट्र की क्या रोल और भूमिका होनी चाहिए आगे चल। बिल्कुल। आलोक बंसल जी, आपसे समझना चाहेंगे, विदेश मंत्री ने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा कि जो वैश्विक व्यवस्था है उसमें निष्पक्षता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना व्यवस्था के जो है, क्योंकि उनका जो बीते काल में जो विसंगतियां हुई या वर्तमान में जो स्थिति है उससे ज़्यादा दूरगामी सोच एक भविष्य को लेकर भी थी। तो ये किस तरह से एक दूरगामी भविष्य का रोड मैप वो खींचते हुए नजर आए? देखिए, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वैश्विक शक्तियां दोहरे मापदंड रखती हैं, विशेषकर पाकिस्तान का मुद्दा उन्होंने उठाया, जहां पे कि आतंकवाद फैल रहा है दुनिया में और जिस तरीके से पाकिस्तान की गतिविधियां रही हैं, और उसके बारे में उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यवस्था को एक निष्पक्ष रूप से चीज़ों को देखना चाहिए, ना कि एक बायस्ड ओपिनियन रखना चाहिए। और उन्होंने जब कश्मीर का मुद्दा उठाया तो उन्होंने उन राष्ट्रों के नाम लिए जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कई बार पाकिस्तान का समर्थन किया या पाकिस्तान के जो विचार थे उनका समर्थन किया। तो ये उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि हमें निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए। अफगानिस्तान के मुद्दे पे उन्होंने बात की कि अफगानिस्तान के मामले में भी किस तरीके से वैश्विक व्यवस्था ने चीज़ों को निष्पक्ष रूप से नहीं देखा।
कई बार जो चीज एक राष्ट्र में उनको किसी एक नजरिए से देखा गया और उसी चीज को दूसरे राष्ट्रों में दूसरे नजरिए से देखा गया। और अगर आप इसको विदेश मंत्री के पुराने वक्तव्यों के साथ जोड़ेंगे तो भी आपको पता चलेगा। आपको याद हो, यूरोप में उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कहा गया था, जब भारत के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया गया था कि भारत क्यों रूस के साथ कार्य कर रहा है, क्यों रूस के साथ व्यापार कर रहा है, तब उन्होंने कहा था कि ये हमारी ज़रूरतें हैं और हमारी ज़रूरतों को समझना चाहिए। और आप जहाँ तक सवाल मानवाधिकारों की बात करते हैं तो आपने अफगानिस्तान को एक बस के नीचे डाल दिया बिना किसी मानवाधिकार की चिंता किए, और आप आज रूस और यूक्रेन युद्ध में हमसे एक सैद्धांतिक स्थिति लेने की अपेक्षा कर रहे हैं। तो विदेश मंत्री ने जो पश्चिमी ताकतें हैं, विशेषकर यूरोपीय शक्तियां, उनको एक आईना दिखाने का कार्य किया कि जिस तरीके से वो दोहरे मापदंडों के साथ कार्य करती आई हैं, आवश्यकता है कि वो एक निष्पक्ष राय रखें वैश्विक मुद्दों के ऊपर। बिल्कुल, नए वर्ल्ड ऑर्डर में एक संतुलन की आवश्यकता उन्होंने जताई है और किस तरह से इसका असर दिखाई देता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग की, और इसमें नए वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर जो एक चर्चा चल रही है और उसी में संतुलन की जो बात कही जा रही है, उस पर दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, लगातार अगर हम देखते हैं भारत की अब जो नज़रिया है या दूरगामी सोच है, उसे सिर्फ जाना ही नहीं जा रहा, उसे पहचाना भी जा रहा है, उसे माना भी जा रहा है, उसका असर भी दिखाई देता है। हम देखते हैं तुलसी गबार्ड का आज का स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत ज़रूरी है कि जो भारत और अमेरिका की जो साझेदारी है वो बढ़े, मजबूत हो। लगातार ये मजबूत भी होती जा रही है और भारत के पक्ष का भी कहीं ना कहीं वो समर्थन करती नजर आई हैं, चाहे आतंकवाद की बात हो, चाहे नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो, और विश्व के तमाम देशों को एक साथ आने की बात भी उन्होंने कही। जी देखिए, तुलसी गैबर्ट की जहां तक बात है, उनके सेशन में ये काफी क्लियर हो गया कि कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे टेररिज्म, अमेरिका के लिए काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने ये भी कहा कि हम अगर अपने इंटरेस्ट्स को देख रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम आइसोलेशनिस्ट, और ये बात उन्होंने भारत को भी बीच में रख के कहा कि भारत जब अपनी इंटरेस्ट को देखता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो रिलेशनशिप आइसोलेशनिस्ट होता है। हम ऐसे युग में पहुंच चुके हैं जहां अपने इंटरेस्ट, अमेरिका फर्स्ट और इंडिया फर्स्ट, ऐसा जो है इस मल्टीलैटरल युग में ये काफी एक अहम स्टेप हो चुका है। और उन्होंने यूक्रेन को भी उन्होंने न्यूजीलैंड को भी साथ में लेके कहा, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कल कीनोट स्पीच दिया था यहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने भारत की इम्पोर्टेंस ग्लोबल साउथ में, नॉट जस्ट ग्लोबल साउथ पर अब भारत को कैसे एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पे उन्होंने एक प्रोजेक्शन उन्होंने किया। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज को ले, वहाँ पे क्वाड जैसे ग्रुपिंग हो, या फिर अब जो इम्पोर्टेंस अभी यूरोप में चल रहा है उसमें भारत की जो वेंटेज पॉइंट, इन सब को अगर आप साथ में देखें तो एक इंडिया इज ऑन अ क्रास्ट। मतलब अब जो नए युग में हम जा रहे हैं उसमें मल्टीलैटरलिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो ग्लोबल शिफ्ट ऑफ पिवट टू ईस्ट हुआ था उसकी जो नींव रखी गई थी, उसमें भारत का रोल काफी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण ये जो भूमिका है वो होने जा रही है। आलोक बंसल जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से आतंकवाद पर लगातार बात आई है और जिस तरह से भारत ने लगातार आतंकवाद को वैश्विक मंचों पर एक बड़े खतरे के रूप में उठाया है, और उसी का असर भी इस स्टेटमेंट में देखा जा सकता है जब वो ये कहती हैं कि जो आतंकवाद है वो पूरे विश्व के लिए, किसी एक देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक समान
ख़तरा है और अपने आप में जो इसमें इसके निवारण के लिए जब हम बात करते हैं, इसमें रोड मैप बनाने की जब हम बात करते हैं और इससे लड़ने की, इसके चुनौती की जब हम बात करते हैं, तो विश्व के जो तमाम देश हैं उनको इकट्ठा करने में भारत की जो भूमिका है वो कितनी महत्वपूर्ण इसमें नज़र आती है? देखिए, भारत आतंकवाद से सबसे ज्यादा ग्रस्त रहा है और काफी समय से दुनिया का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। 9/11 के बाद अमेरिका और विश्व का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। तुलसी गबार्ड भारत की एक पुरानी हितैषी रही हैं, बहुत अच्छी मित्र रही हैं और उन्होंने जो कहा वो महत्वपूर्ण बात है कि आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिससे एक राष्ट्र अकेले नहीं निपट सकता। इसमें पूरे विश्व के साथ आने की आवश्यकता है और एक वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है और इस सहयोग में भारत एक प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है और भारत करता आ रहा है। भारत आतंकवाद का मुद्दा कई दशकों से उठाता आ रहा है और अब धीरे धीरे जो दुनिया है उस ओर ध्यान दे रही है। हमने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, संयुक्त राष्ट्र हो, हर जगह आतंकवाद का मुद्दा उठाया और आतंकवाद से ग्रस्त राष्ट्र होने के नारे जो राष्ट्र आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं उनकी ओर दुनिया का ध्यान भी आकर्षित कराया है। बिल्कुल, दुर्भाग्य से दुनिया के कई राष्ट्रों ने इसका उस तरीके से ध्यान नहीं दिया। तो अब जो विदेश मंत्री कह रहे हैं, उसके बाद तुलसी गबार्ड जो कह रही हैं, ये सब दिखला रहा है कि अब दुनिया जो है इस ओर काफी सीरियस हो चुकी है कि कहाँ है, कौन से राष्ट्र हैं जो स्पॉन्सर कर रहे हैं आतंकवाद को और कौन से राष्ट्र हैं जो ग्रस्त हैं और जो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनको साथ लाने के लिए जो भारत की भूमिका हो सकती है उसमें भारत और अमेरिका को साथ आने की आवश्यकता है। बिल्कुल। विवेक जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात करते हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र की, तो ये भी चर्चा है कि 21वीं सदी का ये प्रमुख भू राजनीतिक केंद्र हो जाता है। कितनी ज़रूरी इस पूरे क्षेत्र की, अगर हम शांति की बात करते हैं, स्थिरता की बात करते हैं या सुरक्षा की बात करते हैं, वो ज़रूरी हो जाती है? देखिए, हिंद प्रशांत और इंडो पैसिफिक जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेट बिहेवियर और ग्लोबल ऑर्डर में इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आप अगले 5 साल और 10 साल में भारत और चाइना जो 2 हेवी वेट्स जो है इस एरिया के लिए, अमेरिका एक रेसिडेंट पावर ऑलरेडी है इस रीजन में, तो आप देखेंगे कि इंडो पैसिफिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी के लिए ही नहीं बल्कि ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए ज़्यादा। और ऐसे युग में जब आपकी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में आई है जो फोकस कर रही है सप्लाई चेन्स, कनेक्टिविटी और अपने अमेरिकन इन्फ्लुएंस थ्रू मिलिट्री को कम कर रही है, ऐसे एज में कनेक्टिविटी, सप्लाई चेन्स और ट्रेड काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और इसलिए इंडो पैसिफिक का पूरा जो स्कोप है वो बदल सकता है अगले 10 साल में, और उसमें भारत की भूमिका अहम रहेगी, क्योंकि आप इंडियन पेनिनसुला को देखेंगे तो वो बीचों बीच है पूरे इंडो पैसिफिक के। वेस्टर्न इंडियन ओशन में हमने भारतीय नौसेना ने ऑलरेडी स्टेप अप किया हुआ है, और ईस्ट ऑफ मलक्का में हमारे फुटप्रिंट्स बढ़ रहे हैं। अगर आप इन सबको एक साथ रख के देखेंगे तो भारत का रोल सप्लाई चेन्स, ट्रेड और सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी में काफ़ी अहम रहेगा। और एक आखिरी बिंदु मैं बता दूं कि जो मिडिल ईस्ट में पॉलिटिक्स अनरावल हो रही है, जो दो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, जो I2U2 है और IMEC है, इन दोनों की आधार भारत से बिल्कुल जुड़ी हुई, और ये जो मेगा ट्रेड कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, इसमें इंडो पैसिफिक कंट्रीज और खासकर भारत का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल। बंसल जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से जो वैश्विक परिदृश्य है बदलता हुआ, जिस तरह की वर्तमान परिस्थितियां हैं और इंडो पैसिफिक का स्वरूप जो है वो लगातार उसमें भी परिवर्तन आ रहा है और बहुत से परिवर्तनों की उसमें आकांक्षा भी जताई जा रही है, उसको लेकर जो प्रयास हो रहे हैं वो कितने ज़रूरी आप समझते हैं और उनका किस तरह से असर आप देखते हैं? देखिए, वैश्विक परिवेश बदल रहा है, विशेषकर राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद विश्व का जो राजनीतिक समीकरण है, भू राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। यूरोप अमेरिका से दूर जा रहा है, अमेरिका और रूस आसपास आ रहे हैं, और ऐसे में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र जो विशेषकर है वहां पे भारत एक सबसे बड़ी शक्ति के रूप में है।
जब हम इंडो पैसिफिक या हिंद पैसिफिक प्रशांत क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें अमेरिका, चीन, काफी अन्य शक्तियां भी हैं और उसके बारे में अन्य राष्ट्रों का जो नजरिया है वो अलग है। जैसे अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र को सिर्फ भारत तक मानता है, जबकि हमारे हिसाब से पूरा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र मिलकर हिंद प्रशांत बनता है। और यहाँ पर जिस तरीके से अभी शेगोस आर्किपेलागो की बात हुई, जिसे ब्रिटेन ने वापस मॉरिशस को छोड़ दिया है और उसमें डियोगो गार्सिया का एक विवाद चल रहा है जिसमें प्रधानमंत्री मॉरिशस गए थे, तो हो सकता है आने वाले समय में जब ये बाहरी शक्तियां इस क्षेत्र से पलायन करें तो वो जो वैक्यूम क्रिएट होगा, जो खाली स्थान पैदा होगा, उसको भरने के लिए भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि इस क्षेत्र में हम एक बेनाइन पावर हैं, एक ऐसी पावर जो कि किसी के लिए खतरा नहीं है और किसी को भी कोई भी आपदा होने में सहायता पहुंचाने में सक्षम है। और ये हमने कई बार दिखाया है और इसी का असर है कि हिंद महासागर क्षेत्र में कोई भी राष्ट्र जब किसी विपदा में होता है तो उसका जो पहला जो सोच होती है वो भारत की तरफ होती है, भारत की ओर वो हाथ बढ़ाता है, भारत से मदद की अपेक्षा करता है। और हमने कई बार प्राकृतिक और मैन मेड जो आपदाएं हैं उसमें अपना ही नहीं बल्कि अन्य राष्ट्रों के नागरिकों को भी वहां पे सहायता पहुंचाई है और सफलतापूर्वक आपदाग्रस्त क्षेत्रों से निकलने में मदद की। बिल्कुल। विवेक जी, एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहेंगे, किस तरह से भारत से जो अपेक्षाएं बढ़ गई हैं और कितनी बड़ी सफलता भारत की विदेश नीति और कूटनीति की भी आप मानते हैं? विदेश मंत्री का एक बेहद अहम स्टेटमेंट ये भी था कि दुनिया का नज़रिया क्या है, उससे बड़ा ज़रूरी है कि जो हमारी कैपेसिटी है और उसमें जो कॉन्फिडेंस है और उसमें बढ़ता विश्वास, ये अपने आप में किस तरह की सशक्तता को दिखाता है? बहुत ही ज्यादा और एक बहुत नई एनर्जी है इंडियन डिप्लोमेसी में आज खासकर, और जयशंकर साहब के उसमें तो लीडरशिप दिखाई देती है। आप अगर आज कोई वेस्टर्न कंट्री से, किसी वेस्टर्न कंट्री से इंडियन डिप्लोमेसी के बारे में पूछेंगे तो ये खासा नजर आता है कि वो रेकनिंग जो है इंडिया की काफी बढ़ गई है। इंडिया के वॉइस में काफी वेट है। स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, कैरिबियन से लेके लैटिन अमेरिका से लेके आप साउथ पैसिफिक में देखें, सारे स्मॉल आइलैंड्स जो है आज बात कर रही है कि भारत अगर ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करता है तो उसमें इंक्लूसिविटी सबसे ज्यादा नजर आती है, क्योंकि उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं छिपा हुआ है अपना, और एक ग्लोबल ऑर्डर की बात की जा रही है। तो इन सब बातों को अगर आप देखें तो इंडियन डिप्लोमेसी एक नए दिशा की ओर बिल्कुल उसकी दमक और चमक साफ तौर पर दिखाई देती है, क्योंकि ये वैश्विक नीति को आकार देने में भी बड़ी संभावनाओं को एक दिशा देती हुई दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया विवेक मिश्रा जी और आलोक बंसल जी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विचारों पर प्रकाश यहाँ पर डालने के लिए। इसके साथ ही इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नागपुर में क्यों मचा बवाल?